Student, I Neha Miglani. Welcome to Divakar Education Hub. Today I am going to discuss the types of research methods with example part 7. This is my 7th video on this topic. In this video I am just going to discuss the last type which we have left in the types of the research examples is experimental research. In this type of research, we are going to discuss the various types of the experimental research also. Experimental research, before discussing the experimental research, I just want to say that please go through my previous videos. They are very important videos in which I have discussed the brief introductions about the different types of the research and also mention or consider somewhat examples to clarify what are the differences between all these types of research. So in this video I am just going to discuss all the types and the experimental research in the brief manner. So let's start our topic. Starting my video, I just want to say that just download the Divakar Education Hub app from the Google Play Store. In this app, you can easily get the UGC NET Paper 1 free online classes, and you can also get the 150 plus mock test from the different subjects which you are going to apply in the UGC NET, and then you can also read free study notes from the paper 1 and 2, and you can also get some announcements are being done under the Divakar Education Hub and the live classes which are going to be conducted in the previous days. Also you can get it, and you can also chat with another students in this app also. So please, I just recommend you that you have to upload or install Divakar Education Hub app from Google Play Store. So in this video I am just going to discuss the examples of experimental research. So before discussing the examples of the experimental research, I just want to discuss the meaning of the experimental research. So in the meaning, or in this video I am going to discuss what is the experimental research, variables and threats to experimental research, what are the types of the experimental research design, and what are the pros and cons of the research design. हम इन सारी चीज़ों को अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Discussing all these things, we will discuss the meaning of the experimental research. Experimental research is a scientific approach to research where one or more independent variables are manipulated and applied to one or more dependent variable to measure their effect on the latter. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक इस तरीके की साइंटिफिक रिसर्च होती है, अप्रोच होता है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि वन वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कैसे मैनिपुलेट किया जाए और उनकी डिपेंडेंसी हम डिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू कैसे देख सकते हैं. तो हम इन दोनों के इफेक्ट्स को हम मेज़र करेंगे. इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर कितना असर पड़ रहा है. सो द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड ओवर सम टाइम टू एड रिसर्चर्स in drawing a reasonable conclusion regarding the relationship between these two variables. तो हम इसमें क्या चीज़ों का अफेक्ट देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कितना अफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर और हम इसको ऑब्जर्व करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड के दौरान, और कुछ एक रीजनेबल कंक्लूजन के ऊपर पहुंचेंगे ताकि हम दोनों के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकें. सो द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड इज़ वाइडली यूज्ड इन फिजिकल एंड सोशल साइंस, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड जो होते हैं वो ज़्यादातर फिजिकल एजुकेशन में यूज़ किए जाते हैं, सोशल साइंस में यूज़ किया जाता
जाता है, साइकोलॉजी के टॉपिक्स में यूज़ किया जाता है और एजुकेशन के टॉपिक में इनको यूज़ किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स विद स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक विच में हाउएवर बी डिफ़िकल्ट टू एग्जीक्यूट। इस तरीके के हम कंपैरिजन इसमें करते हैं जिसमें हम टू और मोर ग्रुप्स का हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई लॉजिक है कि नहीं है और कैसे इनको हम डिफ़िकल्टली हम इनकी एग्जीक्यूट करने में कितनी आ रही है उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। Mostly related to the laboratory test procedure, experimental research design involve collecting quantitative data and performing statistical analysis on them during research. हम लोग लेबॉर्ट्री टेस्ट प्रोसीजर हम इस पे करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती है वो अंडर द लेबॉर्ट्री स्टडी हम करते हैं और इसमें हम ये चीज़ों को हम देखते हैं कि कितनी इन्वॉल्वमेंट हो रही है क्वांटिटेटिव डाटा को एनालिसिस करने के लिए और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को हम करने के लिए। और इसमें ये स्टडी किया जाता है कि हम लोग इसमें जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होती है वो इस तरीके की रिसर्च डिज़ाइन है जो कि आपको क्वांटिटेटिव टाइप्स ऑफ स्टडी को में काउंट इसको किया जाता है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है कि लेबॉर्ट्री स्टडी होती है अंडर द एक्सपेरिमेंट बेस से जब हम काम करते हैं और दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और उनके बीच का कुछ लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहलाती है। So according to the definitions, I have taken the definitions relay accordingly। ठीक है, तो इसमें रिसर्च डिज़ाइन की डेफिनेशन दी गई है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की उन्होंने डेफिनेशन दी है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस आर कंसर्न्ड विद एग्जामिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इसमें कंसर्न करती है कि हम एग्जामिन करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। सो वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड थ्रू द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। हम इसमें मैनिपुलेट करते हैं कि ट्रीटमेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, वो कितना ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। सो इसमें हमने एक डेफिनेशन ली है अकॉर्डिंग टू रिले के अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इज़ ए पावरफुल डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। तो अकॉर्डिंग टू रिले की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एक इस तरीके की रिसर्च डिज़ाइन होती है जिसमें हम टेस्ट करते हैं कि हाइपोथेसिस को कि वो कॉजल रिलेशनशिप्स जो है रिलेशनशिप फाइंड आउट हो रहा है बिटवीन द वेरिएबल्स के बीच में कि नहीं हो रहा है। सो रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक अच्छे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एक अच्छे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट्स आर रैंडमली असाइन टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। हम इसमें दो तरीके के ग्रुप्स इसमें क्रिएट करते हैं जब भी हम एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी को करते हैं। एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंट्रोल्ड ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम EG से डिनोट करते हैं और कंट्रोल ग्रुप को हम ECG से डिनोट करते हैं। सो वी विल टेक द बोथ द ग्रुप्स इन अवर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स क्या होते हैं जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और कंट्रोल्ड ग्रुप क्या होते हैं जिनके ऊपर उनका इफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो हम जो भी इन चीज़ों में रैंडमली हम इनको असाइन करते हैं टास्क, ठीक है, ताकि हम लोगों को एक एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड such that any change in the dependent variable is attributed to change in independent variable। हम लोगों ने डिपेंडेंट वेरिएबल इस तरीके से लेना है जो जिनका अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इस तरीके से शो हो कि हम उनको एट्रीब्यूटल चेंज उनमें देख सके कि उन दोनों का आपस में चेंज कैसा आ रहा है। टाइप्स को आपने बताना होता है कि बेसिकली आप कौन सी टाइप्स को कंसीडर करके चल रहे हो, आप क्वालिटेटिव टेक्निक ले रहे हो या क्वांटिटेटिव टेक्निक ले रहे हो या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हो। फिर आप मेथड्स कौन से यूज़ कर रहे हो डाटा एनालिसिस के लिए, फिर आपका टाइमिंग क्या है स्टडी करने के लिए, आप जो है कौन सा प्लेस अच्छा लेके चल रहे हो, आपका पॉपुलेशन साइज कैसा है, आप वहाँ से कितना सैंपल ले रहे हो, आपकी सैम्पलिंग करने की टेक्निक कैसी है, ठीक है, फिर आपके टूल्स एंड मेथड्स कैसे हैं डाटा कलेक्शन के। तो ये सारे आपकी स्टडी का
कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है और हमने एक वेरिएबल्स कंसीडर की कि कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन सी वैलिडिटीज़ होती है जो आपकी स्टडी एक्सपेरिमेंटल स्टडी को अफेक्ट करती है, और हमने थ्रेड्स पढ़े हैं। उसके बाद हमने आज थोड़ा बहुत टाइप्स को देखा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की क्या टाइप्स होती हैं। So this is all about my today topic, and I hope you will all understand what is the all these things. Thank you so much.